G20 समिट में बोले नितिन गडकरी, हमारा फैसला जनता की अदालत में होगा। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज लखनऊ में जेलर मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग में होंगे शामिल। ब्रजभूषण सिंह से जुड़े यौन शोषण मामले पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई आज। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे अयोध्या का दौरा, श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का लेंगे जायजा। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी की पारदर्शिता पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। हमने शासन को अधिक कुशल और समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. The Gati Shakti platform uses technology and spatial planning to map infrastructure and logistics. It is assisting in planning, reducing costs, and increasing speed of delivery. Our online public procurement platform, the Government e-Marketplace, has brought transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support digital inclusion in all the diverse languages of India. Excellencies, India's digital public infrastructure offers scalable, secure, and inclusive of inclusion, leaving no one behind. The scale, speed, and scope of this transformation is beyond imagination. Today, India has over 850 million internet users enjoying some of the cheapest data costs in the world. We have leveraged technology to transform governance, to make it more efficient, inclusive, faster, and transparent. Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile
to revolutionize financial inclusion in India. वहीं गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बार फिर कलयुगी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को नाले में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक एक राहगीर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 2 नंबर स्थित नाले के पास से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक नवजात पर पड़ी, जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला गाजियाबाद थाना के लोनी बॉर्डर इलाके का बताया जा रहा है। वहीं 15 अगस्त को सीएम भगवंत मान ने आज़ादी दिवस पर पंजाब को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया था और सीएम के इस नशा मुक्त विजन की शुरुआत हो गई है। एसएसपी अमनीत कौंडल के निर्देशों पर खन्ना पुलिस नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू कर चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन से मुहिम शुरू की गई है। इसकी शुरुआत में नशे में के आदी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। नशा मुक्ति केंद्रों से डेटा लेकर पता किया जा रहा है कि कितने समय से कौन नशा मुक्ति कि कितनी तेजी से डोज ले रहा है। इनके परिवारों से भी संपर्क करके इनका इलाज कराया जाएगा। डीएसपी राजेश शर्मा की अगुवाई में सिविल अस्पताल में स्क्रीनिंग की गई, साथ ही संदेहास्पद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। मानयोग मुख्य मंत्री साहब वालों जिवें सख्त निर्देश दिते गए ने भी नशा ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਣ ਉਹ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਹੋਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਸੋ दैट ਇਹ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ। सीतापुर में प्रेम प्रसंग के मामले में अब्बास अली और उनकी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक अब्बास अली के बेटे शौकत ने पास के रूबी नाम की एक हिंदू युवती के साथ प्रेम विवाह कर लिया, जिससे लड़की के परिजनों ने नाराज होकर अब्बास अली और उनकी पत्नी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। आज शाम के समय थाना हरगांव के अंतर्गत ग्राम राजेपुर से सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जब मौका मुआयना किया गया तो इसमें पाया गया कि 2 व्यक्ति जिनका नाम अब्बास और कमरुल निशा हैं, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। इन दोनों की हत्या हुई है। इसमें जो इनके परिवार के जो छोटे बच्चे अभी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जो गाँव के जो अन्य निवासी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि इनके पड़ोसी एक दूसरा परिवार है जो शैलेंद्र जायसवाल, वो उनका परिवार है। इस परिवार के लोगों ने इनके घर के दरवाजे पर आकर मारपीट की, जिस मारपीट में लोहे के डंडे और रॉड इत्यादि से इनके ऊपर वार किया गया, जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई। आज शाम के समय थाना हरगांव के अंतर्गत ग्राम राजेपुर से सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा मौके पर कुछ ना पहले और भैया भाग गई रही, इनकी बहन भाग गई रहा तो वह पुरानी रंजिश रहा। पापा हमने दोबारा खड़े रहे, हमारे के हमारे लाग आगे रह गई है। काहे से मारा? लोहा से ने मारे, नहीं लाठी से ने भाग कर रहे हैं। हमका मारे चले, हम भाग गए। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? आसमीन। पिताजी का क्या नाम? अब्बास।
तुम्हारी अम्मी का क्या नाम था? अम्मी का नाम है कसरुन्निसा। अच्छा, तुम्हारा भाई जो ले गया था बहन को, क्या नाम था उसका? उनकी शौकत। क्या करते हैं? कुछ नहीं। किस समय की है घटना है? 1 घंटा होगा, 4 बजे की रही। अच्छा, एकदम से क्या हुआ? एकदम से ना पहले आए, लड़ाई करे लगे, दोबारा लोहा लेके आए, बेलचा मेरे पापा को मारे लगे। कुछ ना पहले और भैया भाग। वह विंध्याचल धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने माता विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही मां के दरबार में आते रहे हैं। विद्यार्थी काल से भी वो मां के दर्शन के लिए आते थे। मां के धाम आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने ही उन्हें सब कुछ दिया है। माँ विंध्यवासिनी के दरबार में मैं बचपन से आ रहा हूँ। विशेष रूप से प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी काल में मैं विशेष रूप से यहाँ आता था। हर 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने पे यहाँ आता था। सर, ये IAS की नौकरी माँ की कृपा से मिली। उस दरमियान भी जब हम इधर आते थे अपने उत्तर प्रदेश, तो कई बार आने का सौभाग्य मिलता था। इधर भी राजनीति में आने के बाद भी आने का प्रयास रहता है। माँ के दरबार में आकर बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ है, उन्होंने ही जीवन में हमको सब कुछ दिया है। सर, ये कॉरिडोर बन रहा है इतना, ये असीम कृपा है हमारे जीवन की और हमारी असीम श्रद्धा है उनके चरणों में। वहीं गोरखपुर में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशियों को ठगने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर 8 अपराधियों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के बेतिहाता में जुबिलेट इन्फो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फर्जी संचालित कॉल सेंटर का संचालन हो रहा था। इसी क्रम में इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की गई और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें संचालक भी शामिल था। देखिए, गोरखपुर पुलिस और साइबर थाना गोरखपुर के नेतृत्व में एक फेक कॉल सेंटर का यहाँ पर भांडाफोड़ आज हुआ है। ये पिछले 8-10 महीनों में बेतिहाता क्षेत्र में किराए की एक बिल्डिंग में एक जुबिलेट नाम की कंपनी, जो कि कॉल सेंटर के रूप में अपने आप को प्रसारित करके यहाँ पर चल रही थी। बेसिकली इनके द्वारा जो फॉरेन नेशनल्स हैं, विशेष रूप से जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से वहाँ के पेंशनर्स को या एज ग्रुप के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता था। उनको इंटरनेट कॉलिंग करके ये झांसा दिया जाता था कि उनकी जो इंटरनेट स्पीड है वो कम है, जिस कारण से हैकर उनके बैंक अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं और उनके पैसे का ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर रहे हैं। इस झांसे में जब विक्टिम आ जाता था तो उसे हैकर को पकड़ने में मदद करने के लिए और ट्रांजैक्शंस कुछ अकाउंट्स में करने के लिए बोला जाता था। इस झांसे में आके कुछ लोग विदेशी करेंसी में वो अमाउंट जो है वो इनके बताए हुए अकाउंट जो डिटेल है उसमें वो ट्रांसफ़र करते थे, जिसको कि इनके साथी जो कि वहाँ बैठे हुए हैं उनके द्वारा तुरंत अपने अकाउंट से निकाल करके अपना हिस्सा रख के इनको विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर पैसा पहुँचाया जाता था। देखिए, गोरखपुर वहीं हमीरपुर के मौधा विकास खंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल पुरानी सीसी रोड को नया दिखाकर फर्जी मजदूर दिखाकर लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं। 15 अगस्त के दिन 32 मजदूरों की हाजिरी लगाकर MMS किया गया। वहीं पर हमीरपुर का मौधा विकासखंड भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा विवादों से घिरा रहता है। इसके पहले भी मौधा मुर्दों से मनरेगा मजदूरी कराए जाने के मामले में लेकर सुर्खियों में रह चुका है। वहीं पूर्व में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सम्मानित भी किया जा चुका है। पूरा मामला मौधा विकासखंड के पडौरी ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। तो हमीरपुर के मौधा विकासखंड से भ्रष्टाचार की खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर पुरानी सीसी रोड दिखा कर उससे पैसा निकाला गया है।
15 अगस्त के दिन भी मजदूरों के फर्जीवाड़े के साथ पैसा निकाला गया था, जबकि कोई भी मजदूर काम पर नहीं आया था। इस तरीके के फर्जीवाड़े की खबर लगातार मौधा विकासखंड से सामने आती रहती है। फर्जी मजदूर दिखाकर प्रधान और सचिव की तरफ से पैसा निकाला गया। आपको बता दें कि पुरानी सीसी रोड को दिखाकर पैसा बनाया गया है। फर्जी मजदूर दिखाकर ग्राम पंचायत से पैसे निकाल लिए गए हैं। आपको बता दें कि पुरानी सीसी रोड दिखाकर प्रधान ने नई सड़क के नाम पर पैसा निकाल लिया है। मौधा विकासखंड से लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रहती हैं और इसी कड़ी में मौधा विकासखंड से फर्जी मजदूर के नाम पर पैसा निकाला गया है। आपको बता दें कि पुरानी सीसी रोड का काम दिखाया गया है, जबकि सड़क का कोई काम नहीं हुआ है और इसके बदले मजदूरी के नाम के पैसे निकाले गए हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर के मौधा विकासखंड से हैं, जहां पर ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है, जहां पर प्रधान की मिली भगत से सीसी रोड के नाम पर पैसे निकाले गए। वह विंध्याचल धाम में पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने माता विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। उन्होंने मंदिर परिसर में लघु त्रिकोण पथ पर विराजमान देवी देवताओं का दर्शन भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देवस्थानों का विकास होने से मनुष्य का आध्यात्मिक, मानसिक और प्रत्येक प्रकार का विकास होता है। विंध्या कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बधाई और अभिनंदन। प्रकार से विकास हो रहा है, इससे युवा और भी समाज के लोग बहुत ही सहजता से यहाँ तक दर्शन करने को पहुँच सकेंगे और उन्हें शांति मिलेगी, उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा और निश्चित रूप से देवस्थानों का विकास होने से मनुष्य का आध्यात्मिक, मानसिक प्रत्येक प्रकार का विकास होता है। और मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ। आज का यह जो जिस प्रकार से कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बधाई करता हूं और उनको अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।